ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ, ಆ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ನೀನಾಸಂನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಂಥ ನಟಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹಿಂದಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಹಲವಾರು ಸುಂದರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಶಾಕುಂತಲ, ಗಾಂಧಾರಿ, ಆಷಾಢಕ ಏಕ್ ದಿನ್ ಮತ್ತಿತರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಸಾಂ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸಾಂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದವರೇ ಆದ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ ಅವರ ಪತಿ ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದವರು, NST ಪದವೀಧರರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 13ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ, ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಬರ್ಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಪರವಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ. ಮನೆ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕದಂ ಬಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ. ಈ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌಹಾಟಿ ಅಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಗಳು ಕ್ರೈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಲಾವಿದ್ರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಗಾವಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಹುಣಸೂರಿಂದ ಎಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀನಾಸಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹರಿಯೋ ನೀರು, ಅದೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಚಿಕ್ಕಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಸೇರಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರೆಪರ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀನಾಸಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆನಂತರ ರೆಪರ್ಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಂಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ NSD ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು, UR ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, BV ಕಾರಂತರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿಗ್ಗಜರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಜಂಬೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನೀನಾಸಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ತಳಪಾಯ ಏನಿತ್ತು, ತಳಹದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಳಹದಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀನಾಸಂ ಅಂತ ಒಂದು ತಳಹದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು NSDಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ.
ಈ NSD ಡ್ರೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಅಂತ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮೂರೇ ಗಾವಣಗೆರೆನೇ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಲೂ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗಲೂ ಜುಂಕಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತೀವಿ, ಮರಾಠಿ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೇನಿದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರಾಠಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಾಸಂನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು NSDಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಹಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಟಿಯಾಗಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಮರಾಠಿ ಮೂಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಎಳೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು NSD. ಅದೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದುಬೆ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಹಾಂ, ಖಂಡಿತ. ಗಾಂಧಾರಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಗಾಂಧಾರಿನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲ, ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಂ, ಗಾಂಧಾರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಶಕುಂತಲ ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಲ್ಲ. NSDಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟಲ್ಲಿ NSDನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಹಿಂದಿನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಓದೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಲಿತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ದುಬೆನವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಹಿಂದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದು. ಆಗ ಅವರೊಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಸರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ NSD ಒಂದು ಸಾಗರ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಆಗಲೇ ಬಾರುಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೆಪೆಟ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ತಾರಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೆಪೆಟ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಗಳಾಯಿತು ಅದರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನಾಸಂ ರೆಪೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಥಿಯೇಟರ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆ ನಾವು ಭಾಳ ನೆಂಟಿತ್ತು. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಬ್ಬಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಷಾಢಕ ಏಕ್ ದಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಷಾಢಕ ಏಕ್ ದಿನ ಮೋಹನ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದು ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನಾನು ನಿನಾಸಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ NSDನಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಆಷಾಢಕ ಏಕ್ ದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀನ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಖ, ನನ್ನ ಇದು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಸೊಗಡು ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು NSD ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಷರ ಅವರು ನನಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಿ, ನಾನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮುಖ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ನನಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫೆರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳೇನೇನು ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ ನನ್ನದೇ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಶಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಹೌದು, ಶಕುಂತಲೂ ಅದು ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೇರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆಗ ನನಗೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳಾಗಲಿ ಇದಾಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೋಗಳಾಯಿತು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 32 ಶೋಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ವೈದೇಹಿಯವರ ಶಕುಂತಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ಜಂಬೆಯವರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, KV ಸುಬ್ಬಣ್ಣವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಸಾಮೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮರಾಠಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾರುಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು 90ನಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು NSDಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರಿ ನೀವು. ಹೌದು. ರಂಗಾಯಣದ ಅದೊಂದು ಈಗೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು
ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆವಾಗ ರಂಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು, ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನ ನೋಡಿದವರಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರಂಗ ಸಮಾಜದವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ರಂಗ ಸಮಾಜದವರು ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರುಗಳು ದೇಶದ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಂತರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ कदम आपके कदम बहरुल इस्लाम की तरफ कैसे? ये कदम वो कदम आपने बढ़ाया या कदम इन्होंने बढ़ाया? कदम कदम बढ़ाते गए और क्या करें। हाँ, कदम कदम बढ़ते गए। तो आप कदम बढ़ाए इस तरफ? शायद, पता नहीं। क्योंकि कर्नाटक की एक लड़की दिल्ली में आई और आसाम के एक लड़के की तरफ, वो भी बहरुल इस्लाम हाँ। की तरफ कदम बढ़ाए, कैसा लगा? आजकल जो इस्लाम और कदम में जो क्लैश है, इतना क्लैश तो नहीं था उस समय। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, प्राउड के साथ मैं बोलता हूँ, इस्लाम माने ब्रदरहुड एज यू नो, और असम माने समानता। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे भूपेन हजारिका जो सरनेम होता है वो ब्राह्मण का भी है सरनेम, मुसलमान का भी सरनेम है, ट्राइबल का भी सरनेम है, लोअर कास्ट का भी, दलित का भी सरनेम हजारिका हो सकता है। या सरनेम देख के असम में किसी को आप पहचान नहीं पाओगे ही इज हिंदू या मुसलमान या दलित, कुछ भी हो। ये समानता के लिए हम बहुत हमें लगता ही नहीं था। आजकल न्यूज़ देख के या जात पात का जो हो रहा है हमारे वहाँ पे नहीं है, अभी हो रहा है, लेकिन बनाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। उस समय जब मिले थे तो हम तो इस्लाम खानदान का आदम तो नहीं था। और लकीली इनका घर में भी, कर्नाटक में इनका घर के लोग भी इतना एजुकेटेड है, उनको भी बुरा नहीं लगा। साथ में भी आप थिएटर कर रहे हो असम में? या थिएटर, ये थिएटर से आप फिल्म लाइन में कैसे आ गए? मैं तो फिल्म से पहले से जुड़े हुआ हूँ। मैं NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने से पहले मैं कई फिल्म कर चुका था। मैं फिल्मों के साथ लगाव मेरा ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ये थिएटर के साथ ज़्यादा लगाव इसका मेरा। पहले मैं कई फिल्म करके मैं NSD ज्वाइन किया तो उस समय असम फिल्म मेरा नाम था। अभी फिलहाल बेंगलुरु में 13th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, आपका भी मेरी फिल्म नया है मूवी प्रदर्शन द हुआ कल, सेवेंथ स्ट्रिंग। The Seventh String, उसके बारे में कुछ बताएं। सेवन स्ट्रिंग बेसिकली तो मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर के हिसाब से ये थर्ड फिल्म है मेरी। इससे पहले 2 फिल्म मैंने करा था, एक कॉमर्शियल फिल्म जिसका नॉवेल से आधारित किया था मैंने। सेकंड मेरा अपना ही प्ले था, उसको लेके एडॉप्ट किया, थिएटर और फिल्म के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करा, उसको भी अवार्ड मिला, कॉमर्शियली हिट गया लकीली। अभी दिस इज़ थर्ड फिल्म, नॉट रिलीज डेट, जस्ट सेंसर किया हमने। इसमें एक स्पेशलिटी है, द फिल्म बेस्ड ऑन आवर डॉटर्स स्टोरी। बहुत बढ़िया। और उसने भी प्रोटैगनिस्ट का रोल उसी ने किया, जबकि हाँ तो बरखा बहार उसका नाम। तो बरखा उसने वो बचपन से वो म्यूजिक के साथ शौक है, स्टोरी लिखती है। तो एक बार छोटी स्टोरी मैंने पढ़ा तो अच्छा लगा मुझे, ऐसे ही अच्छा लगा, मुझे लगा इसको नाटक भी कर सकते हैं ऐसे। तो उसने कहा अब्बा इसको हम फिल्म बना सकते, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। बेटा ओके लेट्स डू। शॉर्ट फिल्म बनाने की हम शुरुआत किया, हमने शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। ओके, तो शॉर्ट फिल्म बना के मैंने पढ़ने के बाद मुझे लगा क्यों ना इसे हम फीचर फिल्म बनाएं। धीरे धीरे ऐसा सोचने लगा, क्योंकि टॉपिक दिखने में छोटा सा है बट इट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो उसके बाद स्क्रीन प्ले बनाना शुरू किया। हमने ये जो शूट किया ये 8 नंबर 8 की क्या बोलते हैं कन्नड़ में, 8 हाँ, उसका ये ड्राफ्ट है। कुछ ड्राफ्ट मैंने बनाया, उसको पसंद नहीं आया,
क्योंकि ये मैं मैच्योर ब्रेन के तरफ से उसको और डिज़ाइन किया था, सब्जेक्ट ऐसा करो ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद लड़की ने बोला नो बाबा ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। दैट्स वाई ये फिल्म आई वॉज जस्ट कोऑर्डिनेटेड। हाँ, अदरवाइज द होल क्रेडिट गोज टू माई डॉटर, आवर डॉटर। टीनेज का जो उसका उसके पर्सपेक्टिव, हाँ राइट, उसका एक्सपीरियंस था। उसने कब लिखा है ये कहानी? 4 साल पहले चार साल पहले कॉलेज पढ़ रही थी। 17 हाँ। प्लस उसी सब नहीं वही कह रहा हूँ। आजकल हमेशा क्या होता है, हमारे जो ओल्डर जनरेशन है वो लोग बोलते हैं इस फिल्म में क्या मॉरल क्या है, ऐसा बोलते थे। हम बोलते थे कि क्या डिसीजन आना चाहिए। धीरे धीरे आजकल का लड़का नो, जैसे ज़िंदगी ऐसे देना है। लेकिन आजकल का जो जनरेशंस है ट्रू टू देयर फीलिंग, यह उनका पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट है। वो बोलते नहीं आप अच्छे हो बुरे हो। हमारे फिल्मों में भी अब नहीं बोल पाओगे ही इज विलेन और हीरो। आपका जो मूवी है ना, हाँ। उसको सिर्फ 4 लाइन में सिनॉप्सिस बता दो। 4 लाइन में, 4-5 लाइन में ओवरऑल मूवी का है। बरका को पूछिए। ये मुझे लगता है मेरी बेटी से पूछिए, वो तो डायरेक्टर आपने हाँ, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते, एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के नाते, यंग जनरेशन में या अपने ज़िंदगी में जो बचपन में हुआ है उसका एक एनालिसिस होना चाहिए और जानकारी लोगों को देना चाहिए, ताकि और वन काइंड ऑफ नॉलेज होना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंटली जी सके। लड़की हो या लड़का, अपने साथ जो घटित होता है वो पेरेंट के साथ या दुनिया के साथ शेयर करने के लिए हिम्मत रखना चाहिए। दिस इज व्हाट और ये जर्नी अपनी ज़िंदगी में जर्नी में बाद में उसको सक्सेस मिलेगा, ताकि वो घुटन नहीं होना चाहिए, हाथ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ताकि शेयर करे, बिना शेयर करे ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल प्यार भी तो शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ। अगर प्यार शेयर करते हो पेरेंट्स के साथ, घुटन सफोकेशन क्यों शेयर नहीं करो? बेटा कोई बच्चा मरे मुझे पसंद नहीं है, कोई टीनेजर मर जाए मुझे अच्छा नहीं लगता है। हर टीनेजर कोई शेयर करना चाहिए लोगों से, दोस्तों से क्यों ना सही, पेरेंट्स के क्यों ना सही, शेयर करें। और ये द वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सुंदर ये दुनिया में ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहिए। यही मोटो था हमारा एक्चुअली। जिंदगी को सीखे और आराम से सांस ले, खुले आम जिए, ये अच्छा से। पहली बार जब वो टीनेज का एक्सपीरियंस आपके पास इजहार कर रही थी, हाँ, एक्सप्रेस कर रही थी, हाँ। एज ए पेरेंट हाँ, आपको कैसा लगा? बुरा नहीं लगा, क्योंकि वी आर थिएटर पीपल, नंबर 1। नंबर 2, पहले ज़माने में माँ बाप के साथ हम शेयर नहीं करते थे। आजकल के ज़माने में अगर मेरे बाप ने मेरे को जैसे पाला, मारा, ये किया, ऐसा अगर मेरी बेटी के साथ करूँगा तो भाग जाएंगे या सुसाइड करेंगे। आजकल के पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। करना चाहिए, और करना भी चाहिए, शायद नहीं चाहिए, मालूम नहीं है, लेकिन आजकल देखा दुनिया ऐसे ही फ्रेंडली है, बिकॉज दे आर मोर अपडेटेड है, हमसे ज़्यादा अपडेटेड है। हमारा फ़ोन भी नहीं था, ये नहीं था, वो तो आज कंप्यूटर दुनिया को देखा है इन लोगों ने, इसीलिए दुनिया देखा है, इसीलिए हमारा कुछ हिस्टोरिकल फिल्म का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं लिखता तो मेरे से नहीं होता है, मैं कुछ सॉल्यूशन पहले दे देता, उसको मारता मैं तो हीरो को, मैं तो उसको पनिशमेंट देता, ऐसा लगता है। That's amazing. She carried that agony, no? Yeah. That's very terrible actually. और ये कहीं ना पहले के ज़माने में कुछ तो मुंह से बोलते भी नहीं थे। हाँ। पर हम जब बचपन में थे थोड़ा घुटन होती थी, पर किसी को शेयर नहीं कर पा रहे थे कि क्या सोचेंगे। अभी ऐसी बात है ही नहीं, मतलब जो है मेरे अंदर में ऐसा आ रहा है, भाई इसने कुछ मुझे हर्ट किया है तो वो बोल सकते हैं। बात बोलने का मुझे ये अच्छा लगा कि जो भी उनके अंदर वो घुटबंधन ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे हो रहे तो वो एक स्टोरी में निकल कर। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, बहुत बड़े बड़े राइटर है, अमृता प्रीतम देखिए, मामुनी रोशन गोस्वामी, कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में घटित हुई घटनाओं को एक अलग कला, अलग रूप से साहित्य में प्रकट किया है ना, हिम्मत के साथ। तो आजकल के बच्चे बहुत हिम्मत वाले हैं। बहुत देर के बाद किया, अमृता प्रीतम में भी आपने बहुत देर, देर के बाद, लेकिन इसी एज में, लेकिन नाउ शी इज स्टिल यंग, तो एट दिस एज में अगर वो एक्सप्रेस कर रही, ये अपने आप में बहुत बढ़िया है। हाँ, नंबर 1 जनरेशन के लिए ये बहुत पॉजिटिव कदम है। और एक बात है
यहाँ कुछ सच है, कुछ इमेजिनेशंस भी है, वो भी हम जानते हैं. We are that kind of relationship we have among us. समझ गए ना? तो मुझे ओके उसका लिखा उसका अपने फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत कर रही थी, तो किसी ने फ्रेंड्स ने कुछ उसको बोला कि तो ये मुझे एक बार बताया था उसने, अम्मा उसने वो भी छोटी थी, तो उसने मेरे साथ ऐसे शेयर किया, ये क्या होती है इस चीज़ को. तो मैं जितना वो समझ सकती उतना बोला था. और ये लेकिन आजकल के बच्चे मैं बताता हूँ, मेरी बीवी भी इतना बात कुछ पर्सनल बात शेयर नहीं करती जो बेटी आजकल बाप के साथ इतना करने लगे. जमाना इसमें मैंने एक गौर किया, यहाँ पे फादर का रोल आई नहीं है आपके मूवी में. हाँ, फादर का पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्टर ज्यादा नहीं है. मदर के पॉइंट ऑफ व्यू में है. Right. मदर और बेटी के बीच में जो हो रहा है वो हो रहा है एज ए फादर. यहाँ पे नहीं डेलिबरेटली किया या ये तो स्टोरी उसने लिखा, स्टोरी उसका है, टोटली उसका, हमने कुछ चेंज नहीं किया. जस्ट स्क्रीन प्ले के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से कुछ मैंने एडिट किया, एडिट करके जितना हो सके सिलेक्टिविटी होना चाहिए, और ज़्यादा फैला हुआ था उसको मैंने थोड़ा सा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसी को मैंने कॉन्डेंस कॉन्क्रीट वे में करने के लिए कोशिश किया. आपको ये बरका से पूछने से होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जब कहानी लिख रही थी, बाइये लिख रही थी, वो ज़्यादातर हर एक कुछ मैंने के बहुत ऐसे जो ग्रोथ होते हैं अपने माँ के साथ शायद क्लोज है ज़्यादा. हर एक चीज़ में बहुत सूक्ष्म चीज़ भी, अपने शरीर के ग्रोथिंग के बारे में भी वो चीज़ें कुछ मुझे पूछती, तो हम ओपनली बताते थे ये सब नॉर्मल है बा, ये सब शायद उसको लगा होगा कि शायद माँ के साथ ज़्यादा ही है, और जिद भी तो ज़्यादा लगते हैं. एज ए मदर पहली बार आप सुना तो आपके अंदर मतलब क्या? नहीं, ये देखिए, वो ये उसका स्टोरी है, तो आम लाइफ का कुछ सुनते थे तो शायद मैं जिंदगी में ये सब पर्सनल लाइफ का पूरा 100% पर्सनल नहीं है. कुछ है, प्यार हुआ है. उसके फ्रेंड ने उसको कहा था कि स्कूल में किसी लड़का ने उसको अब्यूज किया था. ये उसने मुझे पूछा था ऐसे करते हैं क्या, ये उसका बच्चों का था. नहीं आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है. हाँ. एवरी टीनेजर फेसिंग शुड नो दैट. हाँ, ताकि बोले, हाँ, शेयर करें. पेरेंट का रोल ज़्यादा है. हाँ, पेरेंट उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, या उसको ठीक हाँ. करते हैं. अभी हमारा राइट, सही बोला, बहुत सही बोला, वेरी वेरी. बहुत ज़रूरी चीज़ है. अभी ऐसा क्या हो गया कि शायद आम माँ बाप इस स्टोरी को अलग ढंग से ले सकते थे. बात उसके कहने का, जो इसको ऐसा क्या लिखा है तुमने, ऐसे भी बोल सकते थे, बा ऐसा हुआ है क्या, डाउट कर सकते थे, भाई ये कर सकते थे. Because of we theatre people, theatre family, maybe for that. और चकव को, इब्सन को, इतने सारे हमने रोल्स किया है, जैसे शकुंतला का भी हो और दूसरे भी जो काम करे, तो हर एक रोल के बारे में जब हम जानते हैं तो अपना कुछ हम लोग बाहर निकालते हैं. ನಮ್ದು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಪುಸ್ತಕ, ನಮ್ದೇನು ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ ಹೌದು, ಆ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಥಿಯೇಟರಿನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಸ್ಟಡಿ ವೈಸ್, ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಕಲ್ಚರಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹಾಂ ಹಾಂ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಸ್ವತಃ ತೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ वो एज पेरेंट्स के पॉजिटिव देखा है, ऐसा लग रहा है. क्योंकि आजकल ज़माने में क्या होता है, पेरेंट्स अपने दबाते हैं, हर एक थोप देते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर की बात को सुनने की कोशिश नहीं करते. तो आजकल ऐसा माहौल है, ऐसे वक्त में आप एज ए पेरेंट अपनी बेटी का एक छोटी सी कहानी को आपने इतनी बढ़िया तरीके से, नॉट ओनली कहानी, और एक बात बताऊँ, मेरी बेटी से पूछने भी वो पता चल जाएगा. अभी तक हमने कभी बेटी को बोला नहीं कि डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं चाहिए.
अपने हिसाब से आज भी जो कर रही है आज तक अपने बलबूते जा रही है वो। हम जस्ट सपोर्ट मैंने कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दूर दूर से देखते हैं कुछ अगर वो हुआ तो शासन करते हैं अलग ढंग से, बट उसको पढ़ना है, क्लास में आना है, उसको लिटरेचर पढ़ना है, पढ़ो, उसको ड्रामा पढ़ना है, वो पढ़ना है, अपने हिसाब से वो जारी है। दोनों बेटियां मेरी, दो बेटियां मेरी। राइट बिकॉज वी आर थिएटर ये पीपल। बहुत ये आपने बहुत अच्छे से ये किया कि हमने जब बनाना शुरू किया सोचा नहीं था कि ऐसे भी व्यू आ सकता है एज ए पेरेंट्स और एज ए खुद का बच्चे का कहानी और वो भी सब्जेक्ट। सेम बात रामगोपाल बजाज सर ने भी ऐसे ही बोला है। सेम इतने हिम्मत के साथ आप लोगों ने करा है। पेश आना क्योंकि हमेशा अपने बेटी को एक अलग ढंग से देखना चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व है एक मूवी में। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ सिनेमा में। छोटी बेटी भी है। छोटी बेटी भी रोल हाँ किया। नहीं, फैमिली इसमें शरीक हुए हैं, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियली हमको लगा था कि प्रोड्यूस करना हमारे बस में है या नहीं है और हम ये किसी को ये करें। आपको कहीं डर था ये मूवी अगर हम लेके जाएंगे सोसाइटी में एक्सेप्ट करेंगे आप? हाँ ये आराम से। आजकल सोसाइटी बहुत लिबरल, स्पेशली यंग पीपल। और डर नहीं है। और शुरू में डर नहीं, अभी भी डर नहीं। अभी भी नहीं है। अभी भी डर मैं नहीं। सोचेंगे मुझे नहीं मैंने माँ से शादी किया था ना एक बार ईडीपस में। ईडीपस किया था तो, और इतनी बड़ी बड़ी कहानी हो चुकी है इससे पहले। कल्चरली आप दोनों स्ट्रांग हो, सोशियो कल्चरल लाइफ में आप दोनों स्ट्रांग हो। एज ए पेरेंट आप इसको ले सकते हैं पॉजिटिवली, लेकिन आम फैमिली लोग, सच्ची आम फैमिली लोग अगर ऐसे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हाँ मुझे पता नहीं रिलीज होने के बाद शायद और क्वेश्चन आ सकता है। ये लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, ये करते पता नहीं। हर एक लड़की के साथ, ये तो लड़का भी बोलता है, हर एक लड़की के साथ कहीं ना कहीं ऐसा घटना घटता ही है। ऐसी छोटी छोटी घटना घट जाती है। अपने रिलेटिव के हाथों से क्यों ना सही, एब्यूज बहुत असर पड़ती है और किसी के ऊपर। मैंने अभी एक महीने एक वर्कशॉप किया था त्रिपुरा में। उस वर्कशॉप में मैंने सोचा वहाँ 6 लड़कियाँ थी, 3 या 4 लड़कियों के साथ बचपन में अभ्यास हुआ। उसने ओपनली बोलने की हिम्मत वो बच्चे कर रहे हैं कि उस समय मैडम हमको उस समय पता नहीं चल रहा था कि बोलना नहीं चाहिए। आज भी मुझे घुटन आती है कि मैंने क्यों नहीं बताया। नहीं, अब्यूसमेंट तो पहले से शुरुआत से हो रहा है। ये It's not अब जो लड़की के साथ, लड़का के साथ, मेरे साथ हुआ, मेरे चाचा के साथ, हाँ। क्या बताऊं। She expressed herself no। हाँ। नहीं कर सकते। उस फिल्म में वो पेरेंट को भी नहीं ब्लेम कर रही है, टीचर को भी ब्लेम नहीं कर रही है, सोसाइटी को भी ब्लेम नहीं कर रही है, हाँ अपने ऊपर भी ब्लेम नहीं किया, अपने ऊपर ब्लेम नहीं किया। तो उसने क्या सोचा है, पूरा नेचर में, नेचर पे भरोसा किया उसने। नेचर हैज गिवन है, तो अपने आप में वो अपने आप में एक्सपीरियंस करने को गई है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड पेरेंट्स उसको मौका नहीं देते आजकल एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को। तो इस हिसाब से ये मूवी आज कंटेम्परेरी लाइफ में बहुत बढ़िया मैसेज दे रही है। तो ऐसे बढ़िया मूवी बनाए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये जनरेशन इस मूवी को बहुत ठीक तरीके से पॉजिटिवली रिसीव करेगी। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगता है, रिसीव करेगी या नहीं करेगी? उम्मीद तो इसी रखते हैं, इसीलिए तो बनाया हमने। आप भी पहली बार देखा ना? पहली बार भी देखा, बड़े पर्दे में पहली बार देखा। आपको लगा पहले ऐसा कुछ होता आगे? पता नहीं, आपका बात सुनकर तो अच्छे लग रहे बहुत। बहुत रिच है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट बनाया है, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट बनाया है। और ऐसे स्क्रिप्ट को आप इस तरीके से नरेट किया ना फिल्म में, मैंने देखा कल टेक्निकली आपको किसने कैसे साथ दिया एज अ कैमरा मैन? नो, शुरू से मैं फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं FTA जाने वाला था, FTA में इंटरव्यू भी दिया एडिटिंग के लिए। NSD जाने से पहले मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, वो लेटर भी आया मेरे घर में। उस समय पोस्ट ऑफिस का स्ट्राइक चल रहा था, बहुत लेट लेटर मुझे पहुंचा, तो मेरा नहीं हो पाया। फिल्म मेकिंग बचपन से मेरा शौक रहा। कैमरा का भी काम मैंने भी, आपका मेरा भी नाम देखोगे वहाँ पे 2 आदमी ने काम करा, मेन आदमी दूसरों ने करा। लेकिन आजकल का यहाँ जो DOP बहुत सिंसियर DOP था, इतना DOP मुझे नहीं मिला वहाँ पे। जो यंग लड़के से मैंने काम करा, लेकिन A to Z एवरी मोमेंट हमने डिसाइड किया, क्योंकि
हर जैसे कि एक छोटा सीन भी हो, जैसे कि फ़ोन का सीन था, मुंबई वाला फ़ोन करना है, उसका हम नदी के उसको नहलाते हुए करा मैंने। उस प्रकार से मैं हर सीन को कुछ डिज़ाइन करने के लिए कोशिश किया ताकि गांव से जुड़े रहे, नेचर के साथ क्लोज हो। आपने नोटिस किया होगा वो वायलिन देने का सीन है, वो लड़का वायलिन लेके आके इसको बहन को देगा, वो भी हमने कहीं उठा के ऊपर लेके गया ताकि वहाँ का कल्चर, लोकल कल्चर देखे। ये सब अपना अपना आइडिया हमने, ये सारा कुछ थॉट्स मेरे थिएटर से भी आया। थिएटर के साथ भी वो हिम्मत, थिएटर जो हिम्मत दिया, अलग अलग से डिज़ाइन किया। और लॉस होगा तो अपना ही लॉस होगा ना, क्योंकि इसमें म्यूज़िक भी हमने करा, मैंने फर्स्ट टाइम किया, म्यूज़िक भी किया। हालांकि इससे पहले मैंने फिल्मों में म्यूज़िक नहीं किया था। शॉर्ट फिल्मों में भी किया, शॉर्ट फिल्मों में किया, अपने जो शॉर्ट फिल्म प्रोडक्शन होते हैं उसमें किया, लेकिन फीचर फिल्म बहुत रिच होता है ना वो बहुत ही डिफरेंट नैरेटिव आपने इसमें कंस्ट्रक्ट करके दिया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया फिल्म बना है और बरखा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है वो माँ से सीखा सबको। और स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऑल क्रेडिट गोज टू बरखा, माय डॉटर। या होल स्क्रिप्ट रिटन बाय बरखा ओनली। इवन उसका क्रम जैसे इसके बाद ये सीन होगा, इसके बाद ये सीन होगा, मैंने उसका स्क्रीन प्ले बनाया, दोनों मिलके बनाया, लेकिन टेक्निकली मैंने देखा ना तो मैंने बनाया। उसके बाद उसने कहा अब्बा ये सीन ऐसा होना चाहिए, टोटली वो मेरे साथ था, उसको मैंने फॉलो किया जस्ट, और मैंने सजाया उसको, उसी की कहानी को, और प्राण कैसे आ जाए उसको सजाने के लिए टेक्निकली। थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में, तैयारी के बारे में, टेक्निकल टीम के बारे में कुछ बता सकते हैं? राइट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत मैं असिस्टेंट करना शुरू कर दिया, फिल्मों के साथ असिस्ट किया। मणिरत्नम जी के साथ भी मैंने काम किया, दिल से मैं कोऑर्डिनेट किया। तो लकीली बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के लिए देखा मैंने कभी बैकलाइट का यूज़ देखा। पहले हमारा वहाँ पे बहुत फ्लैट लाइट में काम करता था, लाइटिंग का डेप्थ का नहीं मिला। हालांकि मेरा लाइटिंग का इतना बहुत कम बजट में था, उस प्रकार से नहीं करा, लेकिन हमने टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया। जबकि मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ ना, तो थिएटर में जैसे हम बहुत प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं ना, प्रॉपर्टी भी, फिल्मों में भी हम पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा हमने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समझ गया, वो सब कुछ पहले से तैयार करके रखा। और रिहर्स नंबर 1 स्क्रिप्ट, जब उन्होंने शुरू से बताऊँ स्क्रिप्ट जब वो छोटी सी कहानी सुनाया, देन उसको मैंने बढ़ाते गया, वो करते गया, डायलॉग्स वगैरह बढ़ाते गया, जगह ये किया। देन अप्रूवल के लिए उसको बरखा को देना पड़ा। मैंने कुछ चेंज कर दिया था, मैंने बुद्धिज़्म की, ताकि हम कहीं और बुद्धिस्ट मॉन्क कोई बताएगा ऐसा वो, ताकि कुछ और ब्लैक एंड वाइट ऐसा फिनिशिंग मेरा था। क्या हुआ था वो नहीं बताऊंगा। उसको लेके थर्ड ड्राफ्टिंग के बाद झगड़ा हो गया दोनों बेटी बाप का। तब तक ये रंगायन में थी शादी इधर, ओके रंगायन में थी, तो झगड़ा हो गया ऐसा। तो मेरे बड़ा राइटर में उसी समय मेरे घर पे ही था, उसने सुना, सब कहानी सुना। उसने कहा बाहर तुम क्यों उनके बात सुनो, उनकी बात सुनो ना, ये डिफरेंट। मैंने कहा ये जंगल में एक अचानक घर कैसे आ जाता है, क्लाव कैसे, ये कॉन्सेप्ट नॉन रियलिस्टिक लगेगा मुझे, ऐसा वो मेरा बहस था। नॉन रियलिस्टिक लगेगा जंगल में ऐसा कोई आके बात करे, तो मुझे लगा, उसके बाद मैं हार गया, उसी को मानना पड़ा, समझ गया। अभी आपको तो नहीं लगा कि नॉन रियलिस्टिक, सच में ऐसा हुआ, ऐसा होता है, ऐसा लगा ना, जैसे जंगल में ऊपर से देखा कोई लोग आना जाना हो रहा है घर, ओके। उस कॉन्सेप्ट पहले हमने स्क्रिप्ट के बहुत ध्यान दिया, स्क्रिप्ट, ओके। देन कास्टिंग किया, उसी हिसाब से कास्ट किया, जितना हो सके रियल बात करे। कौन बात करता है रियल? हम दूर दूर नहीं गए हैं, अपने आसपास ही मेरे थिएटर ग्रुप के ही लड़का लड़की सब लोग, ताकि बजट है और मेरी स्कूलिंग उनका स्कूलिंग सेम हो, कोई स्टारजिम ना हो, टाइमिंग 10 मिनट 10 होना चाहिए, 20 माने 20 होना चाहिए, ए माने ए, बी माने बी होना, एक अंडरस्टैंडिंग स्कूलिंग। इसीलिए इसमें इस 3 लेडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। इसके माँ का रोल, इसके जिसके घर जाती है उसके, वो भी तीनों, हाँ तीनों हाँ, ताकि एक्टिंग में भी वो समानता आए, बातचीत लागे, ओके ऐसा हो गया। उसके बाद हमने रिहर्सल शुरू किया, रिहर्सल इन द सेंस स्क्रिप्ट रीडिंग। नहीं, उससे पहले कास्टिंग किया, उसी से कास्ट कर लिया, स्क्रिप्ट रीडिंग एक बार कर लिया। करने के बाद हम लोकेशन हंट में बहुत टाइम लगाया, लोकेशन देखने में, हर सीन का अलग अलग लोकेशन पहले से देख कर रखा। आगे एक लोकेशन के साथ दूसरा लोकेशन मिलता जुलता नहीं होना चाहिए,
ताकि विजुअल ब्रेक होना चाहिए। एक फ़ोन करने का सीन भी हम नदी के किनारे गया, वायलिन देने का भी ऊपर गया, हाँ समझ गया। एक कोई झगड़ा हुआ तो वो पिग होता, पिग ना सुअर का, हाँ क्या था सुअर, पिग, वो कहीं वो सुअर को नहा ताकि उसमें बात करे, ताकि लाइवली लगे। पहले लाइन्स आ गया, हर लोकेशन के साथ एक्टिविटी ढूंढते गए हम, ताकि जीवन लगे। और वो बरका का जो छोटी कैरेक्टर का जो, हाँ उसके बाद बरका का जो छोटा कैरेक्टर, हाँ छोटा कैरेक्टर जो किया, हाँ छोटी लड़की, उसके लिए उसको ऐसे हमने उसको ये किया। उसके बाद वो नॉन एक्टर्स है, एक्टर नहीं है। छोटी एकदम छोटी, बरखा का फोटो देखे फेसबुक में डाला, आजकल तो बहुत ऑडिशन के लिए आ जाते हैं, तो एक ऑडिशन था कि बहुत प्योर लगा वो लड़की, अच्छा उसका हमने कुछ मिलता जुलता है, बहुत प्योर लड़की है, प्योर इन द सेंस इनोसेंटली किया। sensitively एक लंबा शॉट देखिए, डू यू लव मी, उसको ऐसे फेंकता है, 3.5 मिनट का शॉट है, 3.5 मिनट का शॉट है, एक ही शॉट है, ऐसा बस बोलता है मैं, तू मुझे प्यार करते हो नहीं, बोलो ना। देखिए ना, इतनी छोटी लड़की और एक मेच्योर लड़का के साथ कैसे बातें करते उसको कर चले जाते। मुझे लगता है सिनेमा का एक्टर डायरेक्टर के प्रति सबमिसिव होना चाहिए। सब एक्टर मेरे प्रति सबमिसिव थे, मेरे पर भरोसा था, इवन माई डॉटर ऑल्सो, वो अपने हिसाब से करते गया। लेकिन मैंने बोला ये, क्योंकि ये टेक्निकल मीडिया है, मैं जो बोलूँगा यहीं से बोलो आप लोग, ऐसा करो, ये बातों में फिल्म बन गई। तो अदरवाइज बड़े पैमाने में डिज़ाइन नहीं किया, जैसे हमने एक्टिंग डिज़ाइन किया एंड लोकेशन डिज़ाइन किया एंड म्यूज़िक को डिज़ाइन किया, क्योंकि म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। वो वायलिन सीखती है, तो जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब वायलिन का काम ज़्यादा करा मैंने, उसका चाइल्डहुड में जितना सारा वायलिन का इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इस्तेमाल किया। और ये अरबान है, मुंबई से है बरखा, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया थोड़ा सा, मुंबई वाली बात। और अदर्स गांव होते तो फोक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, और टीचर के साथ। और मैंने तो म्यूज़िक सीखा करण जी से, मैंने बोला है कर्नाटक से ही सीखा। कर्नाटक से बहुत कुछ ले लिया। मैं करण जी बहुत मानते भी, करण जी बहुत बार हमारे गिरीश कर्नाटक जी के साथ भी हमने बहुत काम करा, उनके लिए भी मैंने फिल्म बनाई थी, छोटी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस बाय गिरीश कर्नाटक जी। तो मैंने शुरू से मैंने असिस्ट करता गया, छोटी फिल्म बनाता गया। मेजर फिल्म मेरी ये है, लेकिन वो छोटी फिल्म बनाने का जो एक्सपीरियंस है मुझे हेल्प किया। कितना शेड्यूल, कितने दिन शेड्यूल किया आपने, कितने शेड्यूल में किया? बहुत कम दिए, जब से 16, 17, 17 डेज, 16, 17 डेज के अंदर, ड्यू टू बजट। और पहले हमने सब तैयार किया, मैंने बोला ना, खाना पकाने से पहले आलू काट के रखा, प्याज काट के रखा, सब रखा, धनिया रखा। ये भी ऐसा था कि मैं थी रंगाने के 2 दिन के लिए टाइमिंग, रंगायण में वो फोन कर, तब 2 दिन में जाकर करके वापस आना। ये 2-3 दिन में काम करे इसका। मैं बहुत कम इन्वॉल्व, शेड्यूल उसी हिसाब से हमने करा। कितने कैमरास यूज किया? एक ही कैमरा, नहीं बदमाशी किया थोड़ा सा। कुछ जो मुंबई का शॉट्स है, जो ट्रेन के अंदर हो, लोकल ट्रेन हो, मेट्रो के अंदर, तो मैंने ऐप लिया, आईफोन का ही एक ऐप खरीदा। ऐप का नाम है फिल्मिक प्रो मैंने खरीद लिया, 2000 समथिंग इस ऐप को खरीद लिया। फिल्मिक प्रो का क्वालिटी 4K रिजोल्यूशन का ही है। उसको चुपचाप लोगों को पता नहीं चलता कि मैं देख रहा हूँ, पहले रिहर्सल कर दो। मुंबई का जितने सारे ट्रेन का वो का, कि वहाँ मेजर कैमरा वहाँ नहीं ले सकता, सोनी 7 का वहाँ छोटा कैमरा, क्योंकि मैंने अपने नोटिस किया होगा, मैं ट्राइपॉड में कैमरा एक बार भी नहीं रखा मैंने, ट्राइपॉड में हाथ में रखा है, ताकि गिम्बल भी यूज, गिम्बल का ही ऑलमोस्ट टोटल फिल्म गिम्बल में किया, क्योंकि मैंने ट्रैक भी नहीं लिया, ट्रैक में टाइम लगेगा। और गिम्बल से क्यों गया, ताकि ज़्यादा रियल लगे, ज़्यादा जिंदगी लगे। ड्रोन भी यूज, ड्रोन बहुत यूज़ किया। अब बहुत टॉप शॉट वगैरह, ड्रोन का मूवमेंट नहीं रखा, लेकिन मैं स्टैटिक में रखा। टॉप शॉट मुझे लैंडस्केप चाहिए, गाड़ी जा रहा है, बड़ा चाहिए, तो टॉप में लेके गया। उसको मूवमेंट देने से होता, मैंने मूवमेंट नहीं दिया। बहुत शॉट्स मैंने उससे लिया, बट मूवमेंट नहीं करा। मुझे फ्रेम्स भी बड़े प्यारे हैं। हाँ, फ्रेम्स भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। और आसाम का जो नेचर, और मैं पेंटिंग भी मुझे अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है। और ज़्यादा समय के साथ करने से और ज़्यादा पैसा बजट होने से शायद लाइटिंग का वो पर्सपेक्टिव और मुझे मज़ा आ जाता है, डिफरेंट कर। हाँ, ऐसे ही रखा है या जानबूझ के किया, ताकि गोल्डन कलर, इसीलिए इसके बम्बू कलर, वो सेट हमने बनाया, जो जिसमें जहाँ लोग बैठते हैं पहाड़ के, वो अपने घर बनाया। वहाँ से फिर उठा के हमने अपने अपना घर में, हमारा स्टूडियो, थिएटर स्टूडियो, इंडोर का काम घर में किया।
ताकि बम्बू से बना के बम्बू का जो गोल्डन कलर, वो ड्राई कलर मुझे अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा ग्रीन अच्छा नहीं लगता। ग्रीन का भी फेडेड ग्रीन ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया। फंडिंग फंडिंग नो फंडिंग, वी आर द प्रोड्यूसर। लूज फंडिंग। अच्छा मैं इस ओवरऑल फिल्म का बजट क्या था और फंडिंग कैसे आपने इंतजाम की? मैं डिप्लोमेटिक बनूं, अगर पहले बीबी नहीं होने से मैं बता देता सच में। कुछ छिपाना पड़ेगा। एनीवे ये हमेशा गाली देते थे क्या क्या, ये पूरा का पूरा प्रोड्यूस हमने करा। मुझे लगा इससे लास्ट दोनों फिल्मों मेरे प्रोड्यूसर अलग थे। इस बार ये फिल्म भी वो सेकंड फिल्म के प्रोड्यूसर बनाने वाला था। उसी समय गवर्नमेंट चेंज होने का कारण उसका बहुत बिल फंसे हुए थे। मुझे लगा चलो बेटी के खातिर 10 दिन का ये लेके बना देता हूँ, समझ गया। इसीलिए हमने खुद करा, छोटा कैमरा लिया, मैंने बोला सोनी 7 से किया। हाँ, और मुंबई में अपना घर है, उसमें यूनिट रखा हमने, अपने घर पे शूट किया। मुंबई का सारा शूट अपना घर ही है। ओके, तो तकरीबन कितना हुआ बजट? ये से ज़्यादा लास्ट में लगे 21 मैक्सिमम, 21 लाख। इंक्लूडिंग फेस्टिवल फीस वगैरह, ज़्यादा नहीं करा। हिम्मत नहीं था और सब और नहीं सबसे रेमुनरेशन तो किसी हमने लिया नहीं, नंबर 1। सेकेंडली रहने के लिए जगह प्रॉब्लम नहीं, लोकेशन का पैसा देना नहीं पड़ा हमें। एवोपोल जितने सारे पापन ने, बड़ा बड़ा सिंगर ने गाना गाया, पैसा नहीं, किसी को पैसा नहीं दिया। जुबिन गाना गाया, वो रिलेशनशिप के हुआ बना। एडिटिंग वगैरह स्पेशल? एडिटिंग वगैरह मेरे फ्रेंड है, उसको 50,000 में कर दिया उसने। इसलिए जैसे कि कलर करेक्शन 75,000 में कर किया मैंने। मुंबई में जान पहचान है, 75,000 में कर दिया। साउंड 5.1 वो भी 75,000 में कर दिया। हालांकि साउंड का गड़बड़ मैंने देखा यहाँ पे, उसको ठीक करेंगे। रिलीज से पहले ठीक करना है मुझे, साउंड का काम करना है मुझे। और एक दो बड़े पर्दे में देखने के बाद गलतियाँ भी बहुत मेरे मन में पता चला ना। लेकिन ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया हमने, ज़्यादा नहीं किया हमने, बहुत जितना हो सकता है कंट्रोल में रखकर हाँ ये किया। टेक्नीशियन का पैसा फूल का मैंने इधर से उधर से जहाँ भी हम जैसे भी कमाई करते हैं, रखा था कमाई करते, वो सब दे दिया। बाद में कोरोना आने से पहले ये सब काम अगर रिलीज हो जाता है तो हमें पैसा वो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। हो जाता तो पता नहीं, थोड़ा तो कुछ मिल सकता। तो कोरोना में सचमुच का एक डर शुरू हुआ, बैंक बैलेंस 0 है, हम कैसे अभी वो बात क्या करें? एक अंधेरा। पर अभी जैसे आप लोगों ने सिनेमा देखा, ये देखा, तो ऐसा उत्साह है कि चलो यार 1 लाख भी रहे तो कुछ तो करे, एक हिम्मत फिर से आए। रिटर्न्स का क्या प्लान किया? अभी रिलीज करेंगे। ओटीटी के लिए ट्राई किया मन मुंबई मैंने, ओटीटी रीजनल फिल्म नहीं जा रहा है, तो हमने अभी सोचा शायद हिंदी में डब कर रहा हूँ मैं। हिंदी में डब करने से नाम चेंज कर देंगे, क्योंकि और फिर से सेंसरशिप लेना पड़ेगा। और यहाँ के इसका कबीरा का डायरेक्टर नहीं मुझे, उसको वो निगेटिव बना के रखना है ताकि बहुत दिन तक रहे, ऐसा सोचा। वो टेक्निक मुझे मालूम नहीं था। मैं इतना टेक्निकली इक्विप नहीं हूँ। मुझे मन में आए तो इस सीन को ऐसा डिज़ाइन करूँ, उस प्रकार से करता हूँ। मुझे वो फिक्स नोटेशन मालूम नहीं, ऐसा सीन ऐसा होना चाहिए, ऐसा सीन ऐसा करना चाहिए, मन में जो भी आता है। और कहीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कई बहुत अवार्ड मिला, कल भी मुझे मिला ना। कौन सा अवार्ड? कल भी ऑस्ट्रेलिया फिल्म फेस्टिवल से हमें ऑनरेबल मेंशन मिला। इससे पहले आम्स्टरडम में बेस्ट फिल्म मिला। देन चिंचिनाटी फेस्टिवल, अमेरिका में चिंचिनाटी फेस्टिवल में बरखा को स्क्रिप्ट मिला। देन बेस्ट फिल्म और ऑर्नाल्डो एक फिल्म फेस्टिवल मिला। करीब 12-13 फिल्म फेस्टिवल में हमको ऑफिशियल सिलेक्शन। लोनावाला तो असम से, इंडिया का ही छोटा फेस्टिवल है। बड़े फेस्टिवल में 4-5 में हमको अवार्ड मिला। ज़्यादातर बेस्ट फिल्म में है, नहीं तो स्पेशल मेंशन, नहीं तो स्क्रिप्ट में, बेस्ट डायरेक्टर का भी मिला एक बार। मैं तो ये कह सकता हूँ अनबिलीवेबल, इतने कम बजट में आपने इतनी अच्छी बढ़िया फिल्म बनाई और इस जनरेशन के लिए इतना बढ़िया मैसेज दे दिया है। जनरेशन एज वेल एज पेरेंट्स को दे दिया आपने। अपने आप में ये फिल्म बहुत खास है। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपकी फिल्म। बरखा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया फिल्म दिया है, द 7th स्ट्रिंग। रिसेंटली जो प्रीमियर हो गया अभी फिल्म फेस्टिवल में, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? मुझे इतने सारे इमोशंस एक साथ हो रहे थे अंदर ही, एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे कल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा है। बहुत अनरियल सा फील हुआ। घर जाने के बाद आई वाज जस्ट लाइक, आज का दिन इतना अच्छा था, इतना कुछ हो गया।
बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ये शुरुआत एक टीनेज की कहानी, हाँ, आपने जो विटनेस किया, एक्सपीरियंस्ड, ये कहानी को मैं सारे टीनेजर्स और होल सोसाइटी को उसके सामने एक्सप्रेस करना है। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। ऐसे हिम्मत कहाँ से आया यार? वो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे जो मैं चाहती थी कि लोगों तक पहुँचे, एंड मेरे पास एक मैसेज था, वो बहुत क्लियर था कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहती हूँ इस स्टोरी से। एंड बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं इस फिल्म में, एंड मैं कुछ भी रोमांटिसाइज करना नहीं चाहती थी। मैं दिखाना चाहती थी एज इट इज़, ज़िंदगी में जैसे होता है वैसा ही दिखाना था। ऐसा मुझे रोमांटिसाइज करके कि ये बहुत अच्छा था या फिर कुछ भी वैसा नहीं दिखाना था। मुझे एकदम जितना हो सके रियलिटी दिखाने का मन था, और एक मैसेज था जो मुझे बहुत मन था कि मैं एक्सप्रेस करूँ किसी तरह। एंड मुझे लगता है कि इस स्टोरी के थ्रू, इस फिल्म के थ्रू वो एक्सप्रेस हुआ है एंड लोगों तक पहुंची है। जो मुझे कल और ज़्यादा पता चला कि मैं जो बताना चाहती थी वो लोगों तक पहुंच चुका है, पहुंच रही है। हाँ, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड पता नहीं हिम्मत कहाँ से आई वो अपने आप। इसको स्क्रिप्ट बनाने में आपके अब्बा, आप जो अब्बा बोलते हैं ना, हाँ, अब्बा। तो आपके अब्बा, उनका किरदार क्या था इसमें? तो ये डायरेक्टर भी थे, तो स्क्रिप्ट तो स्टोरी लिखने के वक्त मैंने लिखा था, बट डायरेक्टर हिसाब से उन्होंने भी अपना बहुत ऐड किया है, क्योंकि उनको पता होगा कि क्या करने से फिल्म ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ज़्यादा तो उनका डायरेक्टर का भी लिबर्टी था टू ऐड हिज ओन एलिमेंट्स टू इट। तो स्क्रिप्ट हम दोनों का था, स्टोरी मैंने लिखा था, लेकिन स्क्रीन प्ले हम दोनों ने किया था। शुरू क्या क्लैश हो गया था तुमने? हाँ, शुरू में थोड़ा क्लैश भी हुआ था, क्योंकि मैंने स्टोरी अब्बा को समझाया था, तो अब्बा ने कहा कि मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो अब्बा ने स्क्रिप्ट लिखा था। लिखने के बाद स्टोरी बहुत चेंज हो गया था, तो मैंने बोला कि नहीं, वो स्टोरी तुम ये बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम मत देना क्योंकि ये स्टोरी बहुत अलग हो गया है। अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है बहुत, सिर्फ बहुत अलग है। जो मैं सोच रही थी उससे बहुत अलग है। तो अब्बा ने सोचा नहीं, हम एक काम करते हैं कि तुम ही लिखो, मैं अपना ऐड करता हूँ उसके बाद। ओके, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में आना। हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू मान लिया हमने। हाँ, अब्बा ने जो भी लिखा था वो भी बहुत अच्छा है, तो उसको नहीं करा हमने, वो हमने नहीं किया अभी तक। हमारा थिंकिंग अलग है, बच्चों का थिंकिंग अलग होती है। इनका पर्सपेक्टिव को हमने स्वीकार किया। बनते बनते ऐसा हो गया, आपकी पर्सपेक्टिव उनके साथ पेरेंट का भी पर्सपेक्टिव आ गया। हाँ, जब कोई जाके दोनों मिलते हैं ना, इम्पिडेंस मैचिंग, तभी तो कुछ बात करते हैं ना। तो वो हम्बलनेस जो आपने उनको कहानी सुनाए और उन्होंने माना, उसको उन्होंने रिसीव किया, और वो हम्बलनेस के साथ उसको प्रेजेंट किया ना, वो बड़ी बात खास उसमें नजर आई। एज ए डायरेक्टर आपके अब्बा को क्या मार्क्स देना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा मार्क्स देना चाहती हूँ। और हम झगड़े भी होते हैं बीच बीच में, क्लैशेस तो होंगे, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी था कि ऐसा मत करो थोड़ा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ ना अपने पेरेंट्स के साथ, तो एक साथ काम करने में आई थिंक ये फिल्म बनती नहीं अगर अम्मा अब्बा की वजह से नहीं होता तो, क्योंकि मैं अकेले तो शायद नहीं कर पाती। अब तो नहीं, मतलब कुछ सालों के बाद शायद हाँ, लेकिन जब 2018-19 में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि इनके अलावा मैं शायद खुद मेरा इतना हिम्मत भी नहीं होता शायद करने के लिए। और थोड़ा इतना पॉजिटिविटी इनसे भी मिला, इतना सपोर्ट मिला। अगर नहीं मिलता तो शायद मैं अभी भी थोड़ा सा डरती टू प्रेजेंट समथिंग जो मेरे दिमाग में आया। एंड करने के वक्त भी बहुत ऐसे डर लगता है कि ओह मैं कुछ गलत ना कर दूँ, मैं कुछ ख़राब ना कर दूँ, मैं जो मेरा मैसेज ना पहुँचे तो क्या होगा। पर उनका जो सपोर्ट मिला, इनकी जो मदद मिली, उसके बाद मुझे बहुत हिम्मत मिल गई है इसके बाद। लिखने के वक्त आपको हिम्मत आ गई, वो ठीक है। हाँ, वो कितने दिन तक चला आपका वही सिलसिला स्क्रिप्ट बनाने का? 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2017 एंड तक स्क्रिप्ट। हाँ, वहाँ तक 2017 एंड 2018 अर्ली 2018 तक। आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा इसमें? वो पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखना शुरू किया था, उसके बाद मैंने बीच में छोड़ दिया, फिर 2017 में फिर से शुरू किया। देन उसी टाइम में अब्बा ने भी अपना वाला लिखा था, तो मैंने कहा ये मत करो, छोड़ो ऐसा करके। तो उसके बाद अब्बा ने कहा तुम अपना वाला बनाओ, तो मैंने लिखा। उसके बाद मैंने अब्बा और हम दोनों मिलके मैंने इंग्लिश में उनको बताया और एसएमएस में बताया, उन्होंने एसएमएस में लिखा,
और उन्होंने खुद अपना भी बहुत एलिमेंट्स ऐड किया। उसके बाद हम लोगों ने और डिस्कस किया, क्योंकि मैं बैंगलोर में पढ़ रही थी, ये असम में थे, तो हमारे कॉल्स में भी बहुत डिस्कशन वगैरह हुआ। और 2018 का अक्टूबर में शूटिंग शुरू हो गया, वो पूरा मिला के सब कुछ। स्क्रिप्ट लिखा, बोल्डली लिखा, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, और उसके बाद में इसको किरदार आप ही नहीं निभाना पहले ही तय हुआ था? नहीं, मैंने पहले तो सोचा था कि मुझे नहीं करना है। अच्छा, लेकिन हाँ। पहले तो एटलीस्ट मैंने सोचा नहीं मैं बनाऊंगी, करना नहीं है। आप मैंने कहा तुम ही करो, क्योंकि तुमने लिखा है तो कर दो। मैंने सोचा अगर सब कुछ मैं ही कर दूँ तो क्या होगा कि वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं होगा, शायद मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा कि नहीं, करके दिखो, कर लो। नहीं, आपकी स्क्रीन में ऐसा लगा कि आपने डिटरमाइंड थे, आपने सोच के रखा था इसको मैं ही निभाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार सोचने के बाद तो हो गया कि हाँ जस्टिस तो करना है, जो लिखा है उस कैरेक्टर को अच्छे से निभाना तो है। लेकिन ऐसे सोचा नहीं था एक उसने, पॉइंट है पर इसका पॉइंट है कि बिना समझे कुछ करती नहीं जनरली। कुछ भी काम बिना सोचे भी या जब expression। तक कॉन्फिडेंस ना हो जाए ये करना है तब तो नहीं करती। शायद इसलिए वो जो करती है मुझे लगता है दैट्स प्लस पॉइंट। वो बजाती है, वायलिन भी बजाती है, तब तक परफॉर्म मन नहीं करती है गया। जब तक वो खुद कॉन्फिडेंट ना हो। मन जब चाहता है कि हाँ मुझे अभी बाजी का उसको बजाना है, तभी बजाएगी। अच्छा, तो मुझे लगता है वो कैरेक्टर को उसके अंदर इन्वॉल्व था, वो एक डैशिंग था कि हाँ इसको मुझे आज एक्सप्रेस करना है इस चीज़ को। ज़्यादा जिद्दी लगते हैं घर में बचपन से? बहुत शांत है। कभी कभी झूठ बोलता हूँ, बोलना पड़ता है। नहीं थोड़ा मैं अम्मा जी, थोड़ा अम्मा जैसी हूँ ऐसा बोलो क्या? दोनों की तरफ जाओ, दोनों जैसे, दोनों ऐसे ही है सारे घर में, थोड़े पागल से। थिएटर फैमिली है ना। हाँ, सारे थोड़े घर में थोड़े पागल से ही है। जब किरदार निभाने का फैसला किया, जो आप कैमरा फेस करने लगे, एज अ एक्टर फेस किया होगा आपने, बहुत थिएटर में ज़्यादा भी आया होगा, लेकिन आपने एक ऐसी कहानी बताने जा रही है, एज ए एक्टर भी आपको कहीं डर नहीं लगा कुछ? तो मुझे स्टार्टिंग से वही बहुत डर एक था कि ऐसा ना हो कि मैं गलत मैसेज भेजूं, या फिर ऐसा ना हो कि मैसेज गलत, वो मुझे बहुत डर था स्टार्टिंग से कि मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म को ऐसा ना लगे कि हम किसी चीज़ जो अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ, वो रोमांटिसाइज करके प्रेजेंट करें। वो मुझे बिल्कुल नहीं करना था। मेरा डर तो बहुत लगा, क्योंकि मूवी देखने के टाइम पे भी मैं बहुत सोचती हूँ कि ये तो गलत हो गया, ये थोड़ा अलग हो गया, इसका मैसेज ठीक ही निकला या नहीं निकला। या फिर अभी मैं जितनी बार मूवी देखती हूँ मुझे गलतियाँ ही दिखती रहती है कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, अभी क्या करे थोड़ा। तो वो डर तो था, वो तो स्टार्टिंग से ही था, अब भी है। लेकिन अभी रिस्पॉन्स देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं, शायद ठीक ही किया जो किया। कल फर्स्ट टाइम देखा ना हम लोग, बड़े पर्दे में फर्स्ट टाइम देखा। नहीं, वो टीनेज में जब वो अब्यूजमेंट का जो एगोनी है ना, उसको आपने कैरी करके लेके आना उतने साल तक, कब आपको ऐसा लगा कि इसको मैं बताना ही चाहिए सोसाइटी को या तो यंगर जनरेशन को, आई हैव टू एक्सप्रेस दिस? वो 2016 में जब मैंने स्टोरी सोचा था, तभी मुझे ये लगा था कि मुझे ये मैसेज ऐसे देना बात है। नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि ये जितने सारे कहानी यहाँ बताया गया 100% इनके साथ घटित हुआ, ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। वो स्टोरी लिखती है थोड़ा बहुत, अगर जैसे अब्यूज से भी इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो होता ही है, बेस्ड ऑन दैट इनका कल्पना के साथ। ये सोसाइटी में जो होता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है लोगों से। आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? हर किसी के थोड़ा पास बहुत थोड़ा, किसी को थोड़ा बहुत तो होता ही है। विच इज़ अ वेरी सैड ट्रूथ, जो हर औरत बताएंगी शायद कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है। यही मुझे सही खासियत है मूवी में, यही खासियत है। आजकल की जनरेशन उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, मतलब कर रही है। साथ जो हो रही है कर रही है, Yeah. तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मूवी में, तो आप खुश हैं इस मूवी से? Yes. हाँ, आपको लगता है मैसेज रीच हो रहा है? कल देख के कैसा लगा? कल देख के तो मुझे लगा कि हाँ मैसेज रीच हुआ है। इस मूवी को देखने के बाद आपके साथी लोग या तो आपके फ्रेंड्स, उनका रिएक्शन कैसा था? मेरे कोई फ्रेंड्स रो भी रहे थे, और उन्होंने बताया भी मुझे कि उनको बहुत अच्छा लगा मूवी देखकर, और दे आर हैप्पी कि मैंने ये किया। उन्होंने ये भी कहा कि किसने ये सजेस्ट किया था कि मूवी स्टार्ट होने से पहले ट्रिगर वार्निंग एक दे दें, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक्स बहुत है एंड इट कैन ट्रिगर थॉट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इट्स वेरी सैड दैट दिस इज़ द रियलिटी,
क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इट शुडंट बी अ नॉर्मल थिंग, इट शुडंट बी नॉर्मलाइज कि ये सब होते ही रहते हैं तो सबको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। नहीं, दिस इज़ नॉट एट ऑल द केस। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ये सब लोग सेफ होना चाहिए। एंड सिंस इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, कोई सबको वही अभी फिर भी इट्स अ वेरी टफ टॉपिक टू टॉक अबाउट, इसीलिए तो उनको अच्छा लगा कि आई मेड अ फिल्म आउट ऑफ दिस टॉपिक, तो वही, हाँ, उतना ही। सोसाइटी में पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, ऐसा कुछ मानते हो आप? सोसाइटी उतना बोल्ड है लगता Smart है है, आपको? smart आजकल society. आजकल का जो सोसाइटी है, इट इज़ वेरी स्मार्ट सोसाइटी। इवन टीनेजर्स आर, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट। Smart. आपने उसमें पिल का वगैरह दिखाया ना, दे आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। तो वो इसको कैजुअली लेंगे या तो बहुत सेंसिटिव सोच कर? आई थिंक मूवी देखने के बाद इट वुड मेक पीपल थिंक एंड इट वुड मेक पीपल अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा तो नहीं होगा कि देख के हाँ ठीक था, मतलब ऐसा, मतलब क्या, मतलब इट वुड जनरेट सम थॉट्स लोगों के दिमाग में। ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये तो लाइट मूवी था, ऐसा नहीं होगा, मतलब कि हाँ तो, अच्छा लगा लेकिन ख़राब लगा, जो भी हो, मतलब आई थिंक ये मूवी देखकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे एंड बहुत इंटरप्रिटेशंस भी आएंगे, आई गेस। मेरे को लगता तो वैसा है, और आना चाहिए, आना चाहिए। और आ गए, that's it then. अगर बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्या सेंसिटिव टॉपिक जो होता रहता है, लोगों को सुनते रहते हैं, तो इट आई फील लाइक इट वुड अफेक्ट पीपल डिफरेंटली। ऑब्वियसली सबको सेम हिसाब से इफेक्ट नहीं करेंगे, बट आई होप जो भी एंड रिजल्ट हो इज़ फॉर द गुड। एंड ऐसा ना हो कि मैसेज गलत हो गया या फिर किसी को बुरा लगा देखने के बाद, ऐसा ना हो, आई होप ऐसा ना हो। आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं, हाँ लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, हाँ। तो वो कौन से राइटर्स हैं जो आप बहुत इन्फ्लुएंस हो गए उनके से? एक्चुअली एक नाम नहीं बता सकती क्योंकि इंग्लिश में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो बहुत अलग अलग राइटर्स हैं जिनके किताब मैंने पढ़े हैं और अच्छा लगा है। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा होगा अभी सडनली, बिकॉज मैं एक नाम नहीं ले सकती। और मूवीज़ ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है, मूवीज़ ने शायद ज़्यादा किया होगा बुक्स से कंपेरेटिवली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बुक्स ने बिल्कुल नहीं किया। बुक्स के वजह से बहुत कुछ चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में भी एंड मेरे थॉट्स में भी, एंड द वे आई लुक एट लाइफ एंड द वर्ल्ड। सो व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर डू आई लाइक? मुझे दोनों फिक्शन नॉन फिक्शन दोनों अच्छे लगते हैं, ऐसे और आई रीड बोथ ऑफ देम। ऐसा एक नहीं है, आई एम ओपन टू ऑल जॉनरास। फिल्म्स में भी सेम है, ऐसा नहीं कि मुझे एक ही जॉनरा अच्छा लगता है, मुझे बहुत सारे जॉनरास अच्छे लगते हैं, और जिसका स्टोरी लाइन अच्छा होता है वो मुझे और अच्छा लगता है, एंडिंग जिसका अच्छा होता है मुझे और अच्छा लगता है, एंड जो मूवी देखकर मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, मुझे वो सब मूवी अच्छा लगता है कि देखने के बाद मैं सोने के टाइम पे वही सोचे जा रही हूँ कि मूवी में क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, इसके पहले क्या होता है। तो वैसे मूवीज़ अच्छे लगते हैं जिसमें मुझे सोचना, जो मुझे फोर्स करते हैं सोचने में। मैं इसको देखने के बाद सोचा कि कहीं माया एंजेलो, हाँ, उनके वर्स को ज़्यादा पढ़ते होंगे आप। मैंने उनके पढ़े हैं पहले। उनके साथ भी मतलब टीनेज हाँ, में हाँ, ऐसा वही, कुछ हम, हादसा हाँ, हो गया था हाँ, उनके साथ, हाँ, तो उन्होंने कहानी में लाया था हाँ, माया हाँ, एंजेलो इज मोस्ट वाइडली रेड यस ट्रू, राइटर, तो उनका कोई इन्फ्लुएंस होगा बोल के ऐसा सोचा था ट्रू। आपके? हुआ या नहीं हुआ? इन्फ्लुएंस हुआ क्या? नहीं ना, ये हुआ लिखने के टाइम पे नहीं, बट इन दैट प्रोसेस जब मैंने कॉलेज में भी पढ़ा था तो हाँ, अनकॉन्शियसली रह भी सकता मन में, हाँ, सबकॉन्शियसली हो सकता है मुझसे। तो आपको हर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपका मूवी शो हो रहा है, थोड़ा यहाँ बहुत, पर भी हो गया है, हाँ, और मेनी अवार्ड्स आपके क्रेडिट में आ गए हैं, एज राइटर भी मिला उसका, एज ए राइटर भी वो मिला भी है। चिंचिनाटी प्रेस्टिजियस फेस्टिवल। Okay, कैसे लगता है? बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद राइट पाथ में हूँ, इसी रास्ते में जाना चाहिए शायद, इसीलिए इतना
अच्छा लग रहा है कि बिगिनिंग में ही आई फील लाइक कि हाँ शायद यही रास्ता है जो मुझे लेना चाहिए, शायद पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपने यू, हमारे से बात किया। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು. ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಬರ್ಕಾ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ. ಈಗಿನ ಟೀನೇಜರ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಗೀರಥಿ ಬಾಯಿ ಕದಂ, ಬಹರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಬರ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಹೃದಯರೇ, ಬಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.